Okay, so let's start, guys. Give me a second. Okay, so lines and angles and triangle, part two. So part one we had conducted where we had seen lines and angles completely, or triangles. We had seen the classification of triangles. We had seen properties of triangle, and then we have seen the uh, in center, circumcenter, the centroid. वो सब cover कर लिया था, ठीक है? So small recap, and then we start with today's topic, right? So not that bigger recap, just basic वाला recap करवा देता हूँ. So what we have seen in lines and angles and triangle, in case of an isosceles triangle, अगर isosceles triangle है तो जो तीनों points थे that we had discussed, ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ. We discussed median, which cuts the side into two equal parts. Altitudes, which is basically a right angle पे होता है जो side, line drawn from the apex, right? Then angle bisector, which divides an angle into two equal parts. ठीक है, and then there was a perpendicular bisector. अब then we had seen कि इसका meeting point से क्या बनता है, what we have. So median का meeting point, when we see the intersection of the medians, it's basically a centroid. The property of centroid was every median divides a triangle into two equal areas, two triangles of equal areas. The second one was it is in the ratio 2:1, right? So इसका जो side होता है 2:1 का होता है, and from the apex it's two parts and one part from the base. So this is my two parts and this is my one part. This is my two part. This is my one part, right? And then three times the sum of the square of the side is equals to four times the sum of the squares of the median. Means three times these three sides square equals to four times the median का square का sum. Then we had seen Apollonius theorem. If you remember, it was this square plus this square plus twice of this square and half of this square. And ठीक है. So moving on, then we had seen orthocenter. Orthocenter क्या होता है? Orthocenter is made by altitudes का meeting point. So all the altitudes का meeting point is known as orthocenter. वहाँ क्या property था? Your this angle plus this angle is equals to 180, right? So these two angles add up to 180 in all the places. Again, you have one formula here, but you can neglect in this case, right? Because this is nothing but right angle triangle का Pythagoras theorem यूज कर रहा है. AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस माइनस BD स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे आया है. बिकॉज इज नथिंग बट राइट एंगल ट्राइंगल का. देखो ये वाला लो ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा? योर AB स्क्वायर is equals to your AD square and plus BD square. एंड इस तरफ से करोगे तो क्या आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. इफ यू फाइंड AD स्क्वायर इन बोथ ऑफ दीज, यहाँ पे क्या होगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, विच इज बेसिकली दिस वन. ठीक है. सो वही वाला है, कुछ ज्यादा कुछ अलग नहीं है. सो यू कैन नेग्लेक्ट दैट पार्ट. देन कम्स इन सेंटर. आया था इन सेंटर वॉज बाई एंगल बाई सेक्टर के मीटिंग पॉइंट में. एंगल बाई सेक्टर का मीटिंग पॉइंट इन सेंटर, वेयर द प्रॉपर्टी वॉज कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल. ठीक है. There was angle bisector theorem कि if a line bisects the angle, this angle, then this by this is equals to this by this.
ठीक है। एंड व्हेन यू ड्रॉ अ सर्कल हेयर, ऐसा, इसको इन सर्कल बोलते हैं, और इसको रेडियस को इन रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इन रेडियस। नॉन नेक्स्ट इज सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट। एंड इफ यू ड्रॉ अ सर्कल हेयर विद दिस एज अ रेडियस, ये सरकम सर्कल बन जाएगा, और ये रेडियस को तुम बिग आर से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी हियर? दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। ठीक है, आई 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 होप आई एम क्लियर, यहां तक हमने किया था लास्ट लेक्चर में, राइट? अब इफ इट इज अ केस ऑफ एन आइसोसलीस ट्राइंगल, क्या होता है आइसोसलीस ट्राइंगल में? ऑल फोर लाइंस, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर द सेम लाइन ऑफ वर्टेक्स एंक्लोजिंग, मतलब सेम लाइन पे होता है ये। जैसे ये आइसोसलीस ट्राइंगल है, अगर तुम इसका मीडियन बना दोगे, ठीक है, उस पे ऑल्टीट्यूड बना दोगे, एंगल बाइसेक्टर बना दोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दोगे, सारे एक ही लाइन पे होने वाले, यही एक लाइन सबके लिए होता है। द पॉइंट विल बी डिफरेंट, ऐसा। यू कैन सी सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, दैट इज इन केस ऑफ एन आइसोसलिस ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल होगा तो सभी एक ही जगह पे आने वाले, एक ही पॉइंट होगा सबका, एंड दैट्स द सेम लाइन। इक्विलैटरल में ऑल फोर लाइंस, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आर द सेम लाइन फॉर ऑल थ्री वर्टाइसेस, मींस इज द सेम लाइन, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। ऑल फोर पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉन्करेंट, एक ही जगह पे होगा। आई होप दिस इज क्लियर, सबको एक क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो, हाँ। सर आप एक बार इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं क्या? देखना, देख ये जो है, एक मिनट पीछे आता हूं मैं, ये देख, ये डायग्राम समझ में आया? हाँ। ठीक है। अगर तुम इक्विलैटरल बना दो तो क्या होगा? इक्विलैटरल है ये, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी है। तो इसमें मीडियन ये हो गया, यही तेरा एंगल बाइसेक्टर भी हो गया लाइन, यही तेरा ऑर्थो क्या नाम है, ऑल्टीट्यूड भी हो गया, और सेम इधर से भी वही, इधर से भी वही। तो इसका ये सारा पॉइंट ही यही होता है, यही इन सेंटर है, यही सरकम सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही सेंट्रोइड है। इसमें सब अलग अलग जगह पे हैं, बट सब सेम लाइन पे है। गॉट इट सर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आइसोसिस ट्रायंगल तू ऐसा भी बना सकती है, देख, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी एक आइसोसिस ट्रायंगल है, राइट? तो लेट्स से अगर मैंने अभी ऑल्टीट्यूड बनाने का ट्राई किया, मतलब नहीं बने जल्दी, बट ठीक है, अगर बनाने का ट्राई किया तो इसके सारे पॉइंट्स अलग जगह पे आएंगे। ठीक है, बिकॉज देखो यहां से आइसोसलिस वाले केस में, इफ यू मेक अ बेकार सा आइसोसलिस, इसे एकदम लंबा सा बना दिया तूने, तो इसमें देखो तुम्हारे मीडियंस अलग अलग जगह पे आ गए। इसका मीडियन यहाँ है मान लो, इसका मीडियन शायद यहाँ होगा, इसका मीडियन यहाँ होगा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं और होगा, बिकॉज यहाँ लाइन ऐसा है, तो इसका परपेंडिकुलर मान लो ऐसा हुआ, इसका ऐसा, और इसका ऐसा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स अलग होंगे, लेकिन सेम लाइन पे होगा। समझा अभी डायग्राम में कैसा होता है? हाँ सर, समझा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एक ही लाइन। हाँ, उसमें आइसोसिस में सेम लाइन पे रहता है सारा, मतलब इसको कोलिनियर बोलते हैं, कोलिनियर है, एक लाइन पे है। और
जो अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे सारे हैं। ओके, सो लेट्स सॉल्व बेसिक सा तीन सम है, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैड डन लास्ट लेक्चर में। ये तीन सम कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी आंसर्स। क्या दिया है भाई आंसर्स? 40 50 90 C8, 40 50 90 C7, C38. Okay, so the sum of base, the sum of the base angles of a triangle is 140 and the difference is 40 degree. Find the angle of the triangle. I think you can do it, right? So sum of the base angles of a triangle is 140. That means this plus this is 140. So let's say x plus y, sorry, x and y. So x plus y is 140 and their difference is 40. X minus y is 40. You can easily solve it. Linear equation solve करके x y आ जाएगा. Next, ABC is a triangle such that AB is 10. तो यहाँ पे ABC, यहाँ AB is 10, AC is 3, the side BC, the side BC is lying between 10 minus 3, that's 7, and 10 plus 3, that's 13. इसके बीच में लाई करेगा. BC is less than 13, you can say. हाँ यही है, एक ही टोला मैच कर रहा है उसमें, ठीक है. टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 4 and 10, इंटू थर्ड साइड इंटीजर, हाउ मेनी पॉइंट्स? अगेन सेम वे, 4 10, 6 से लेके 14 के बीच में लाई करेगा, बिटवीन 6 and 14. सो व्हाट यू हैव, 7 8 9 10 11 12 13 14, 13 सॉरी, तो 7 वैल्यूज, नॉट 8 वैल्यूज, 7 वैल्यूज. 14 को काउंट नहीं करना, 6 को काउंट नहीं करना. तो ये तो बहुत बेसिक सम है, हमने लास्ट टाइम तो वी डिड अ वेरी डिफिकल्ट सम, तो दिस इज वेरी बेसिक इन दैट केस, ठीक है. चलो, वो ये सब रिकैप के लिए था, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के लिए. नेक्स्ट मी मूव फॉरवर्ड. ये सब हमने कर लिया है, ये सब कर लिया है, ये सब कर लिया है, ये भी कर लिया है. ओके, एक फॉर्मूला बस यहाँ एक्स्ट्रा आता है कि जो इन रेडियस वाला केस था, इन सेंटर वाला केस था, ठीक है, इन सेंटर, उसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, RS.
area of triangle is equals to RS. This is a formula. Area of triangle in center is R small radius into S. S means semi perimeter of the triangle. ठीक है, नेक्स्ट। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑल्सो वी हैव सीन, ये सर्कम सेंटर वाला केस है। सर्कम सेंटर केस में यू हैव सीन द प्रॉपर्टीज, राइट। मैं वो वापस रिपीट नहीं करूँ, जस्ट किया है हमने। ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ठीक है, हो गया ये हो गया, बस यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है ABC/4R। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ABC/4R। वहां पे क्या था, SR था, यहाँ पे क्या है, ABC/4R है। What are we talking about? We are talking about the area of triangle in case of a circumcircle. सर, इसमें एबीसी के वैल्यूज क्या होते हैं? एबीसी मतलब तीन साइड ऑफ द ट्राइंगल को बोलते हैं। तीन साइड ऑफ द ट्राइंगल जो भी दिया रहेगा ना वो यूज करेंगे हम लोग। लेट्स से इस गिवन की यार, मेरा जो ये तीन साइड है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है। और मेरा सरकम रेडियस, जैसे ये जो रेडियस है, वो मान लो लेट्स से एग्जांपल 5 आता है। तो तेरा एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी अरे क्या हो गया इसको, हाँ। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ABC, दैट्स 4 × 5 × 6 बाई 4 सरकम रेडियस विच इज इन दिस केस 5, लेट्स से। ठीक है, जो भी रहेगा यूज करना है। सर S × R का क्या है? S × R मतलब लेट्स से इसी में हमको अगर एरिया निकालना है, तो इसमें एरिया निकालना है तो क्या होगा, इसमें S का मतलब सेमी पेरीमीटर, क्या करना है, सेमी पेरीमीटर सबको ऐड कर दो, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ये पेरीमीटर हो गया 15, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 15/2 विच इज 7.5। और जो भी इन रेडियस दिया रहेगा इसका, मान लो छोटा रेडियस दिया है यहाँ पे 3, तो × 3। ये फॉर्मूला है बस, तुमको S मतलब सेमी पेरीमीटर, ABC मतलब तीन साइड्स, स्मॉल r इज सरकम इन रेडियस एंड बिग R इज सरकम रेडियस। Okay, we have seen this isosceles triangle, we have seen equilateral triangle. Moving on. External angle bisector theorem. We had just seen interior angle bisector theorem. Exterior angle में क्या होता है? If you remember, interior में क्या था? Interior angle bisector theorem में था कि this angle is equals to 90° plus half of this angle. This was interior angle bisector theorem. Exterior angle में अगर बाहर का एंगल, exterior angle अगर bisected है और वो एंगल निकालना है, तो दैट इज 90 माइनस हाफ ऑफ दैट एंगल। ठीक है। सो इन दिस केस, लेट्स से दिस इज माई एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, एंड दिस इज लेट्स से आई, एक्सटीरियर एंगल वाला। अंदर करेंगे तो स्मॉल आई लिख दिया, मान लो ये वाला, ये हो गया स्मॉल आई, मतलब आई सिर्फ, और ये आई डैश है, आई डैश मतलब एक्सटीरियर एंगल। तो माई वाई आई डैश जेड मतलब ये एंगल जो है, दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। इसका एंगल क्या था, 90 प्लस था, बाहर वाले में 90 माइनस हो गया। स्मॉल स्मॉल पॉइंट, बट देखो ये बहुत बेसिक सा चीज है, राइट। फॉर्मूला है ये, राइट। इफ यू डोंट नो, लेट्स से माय क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है। अब इफ समवन वांट्स टू ट्राई कि मुझे BOC एंगल निकालना है, और नॉर्मल मेथड, दूसरे मेथड से ट्राई करके देखो, किस मेथड से यू कैन फाइंड, यू विल बी एबल टू फाइंड, आई गेस। करो। मीन्स यू आर फाइंडिंग दिस एंगल, यू हैव अ फॉर्मूला राइट नाउ हाउ टू फाइंड दैट एंगल, बट विदाउट दैट फॉर्मूला इफ आई वांट टू फाइंड, फिर कैसे करेंगे? तो भी आ जाएगा वैसे, मैं वो भी सिखा दूंगा तुमको, लेकिन फिर भी फर्क पड़ेगा, तुम्हें समझ में आएगा, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पहले तो आंसर क्या आ रहा है मार्क करके दो, और फिर दूसरा मुझे फिर बताओ कि इसको दूसरे वे में कैसे करेंगे।
तो यार आई होप तुम लोगों को फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो पता था। फॉर्मूला वाज व्हाट, फॉर्मूला वी हैड सीन वाज दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल, मतलब दिस एंगल हाफ ऑफ दिस एंगल, इसका आधा कितना होता है, 80 का आधा 40 होता है, 40 माइनस कर दिया मेरे को 50 आ गया, चल ठीक है, ये तो बहुत बेसिक वे हो गया। अभी बहुत जल्दी बन गया राइट, अगर क्वेश्चन को एग्जाम में स्नैप में और समवेयर इट कम्स अप, you can solve in let's say 15-20 seconds, but let's say अगर if you are not able to recall this तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। यार ये मेरा 80 डिग्री है, एनीवन हु नोस, किसने ट्राई कर लिया, आ गया, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। ट्राई किया सर, 50 नहीं आया। क्या 50 ही है? 50 नहीं आया उसमें। अच्छा 50 नहीं आया, तो सही से ट्राई नहीं किया तूने। हाँ एनीवन एल्स जिसने किया है अभी? सर मैंने ट्राई किया, 50 आया। हाँ 50 आया, कैसे किया? सर एक और बार फॉर्मूला बता ट्रायंगल का सकते हैं? हाँ बोलो। ट्रायंगल का सम 180, तो ये 80 हट करेक्ट, तो गया ये तो दोनों मिला के 100 100। 100। हाँ ये दोनों मिला के 100। और ठीक है, दोनों फिफ्टी स्ट्रेट फिफ्टी लाइंस नहीं है। लेना है। हाँ सो एज दिस सी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, 80 ये है, इट माइट बी 40-60, इट माइट बी 50-50, बट जो भी है मिला के तो 100 ही होने वाला है। आगे नेक्स्ट। फिर दोनों स्ट्रेट लाइंस है, तो दोनों करेक्ट, 180 180 तो 360 हो गया वो। करेक्ट, दोनों ये दोनों मिला के 180, 180 इज 360 डिग्री, बट 360 में से इंटीरियर दोनों मिला के 100 है, तो 100 रिमूव कर दिया, तो बचा तुम्हारे पास कितना, 260। ओके नेक्स्ट। उसको हाफ कर दिया क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स है करेक्ट, तो। तो ये दोनों मिला के मतलब, सी, फॉर अदर्स दिस एंड दिस, दीज टू एड अप टू 100, ये पूरा मिला के इट्स 360। उसमें से इफ यू रिमूव दिस 100, ये वाला और ये वाला मिला के 260 है, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आधा आधा 260 का हाफ, मतलब ये दोनों मिला के 130 है, और फिर ये एक ट्राइंगल ही है, तो ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो 180 से इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू एंगल दिस बिकम्स 50 डिग्री, बराबर। So this is how you can calculate without the formula of external angle bisector theorem. सेम में इंटरनल एंगल का भी हम निकाल सकते थे सेम मेथड से, बट सी द डिफरेंस, जब तेरे को पता है कि व्हाट इज द मेथड, तो तुम्हें पता है मुझे ये निकालना है, तो मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि 90 माइनस आधा, 50, और वो नहीं पता तो मुझे थोड़ा सा खेलना पड़ रहा है, राइट, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। So that's the only difference when you know a theorem and when you don't know a theorem. Okay, now we move to the next important part which is right angle triangle में, right, पाइथागोरस थ्योरम जो आता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आई होप एवरीवन नोज हियर। पाइथागोरस में क्या होता है कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ काम करता है। व्हेन यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और उसमें जो राइट एंगल के सामने होता है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और लेट्स से ये परपेंडिकुलर ये बेस है, सो योर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस द बेस स्क्वायर। सो आई होप यू नो दिस। दे आर सम ट्रिपलेट्स जो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है कि लेट्स से इफ माय हाइपोटेन्यूस इज 5 and this, so if this is 3, this is 4, so Pythagoras is 5, 3 square plus 4 square is 5 square, right? So 3 4 5. Okay, so 3 square plus 4 square is equals to 5 square, and these are the important triplets कि यार ये जो है ना 3 4 5, so if there is a 3 4 5, इसका डबल कितना होता है 6, तो इसका डबल कितना होता है 8, तो इसका डबल कितना होता है 10, तो ये भी पॉसिबल है। इसका ट्रिपल कितना होता है 9, इसका ट्रिपल कितना होता है 12, इसका ट्रिपल कितना होता है 15, ये भी एक फिर ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, सो इफ यू नो टू साइड्स यू कैन नो द थर्ड साइड, यू डोंट हैव टू स्क्वायर इट। लेट्स एग्जांपल, मेरे पास दिया हुआ है यार ये वाला जो है ना 50 है, ये वाला 50 है, ये 40 है, तो ये कितना आएगा, तो आई नो कि 3 4 5 का रूल है, तो 40 है 50 है, तो ये मेरा 30 हो जाएगा। Similarly, what are the
the other triplets are 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 21 21 20 21 29 35 12 37। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डन, नोटेड। ओके, नेक्स्ट इज 30 60 90 ट्राइंगल, स्पेशल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में आफ्टर द पाइथागोरस वन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 30 60 90 ट्राइंगल, सो द साइड्स आर इन द रेशियो 1 √3 एंड √2। जैसे एग्जाम्पल, ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 90 है, और ये मेरा 60 है, सॉरी 60 है। द साइड in front of it will be in the ratio of 1 √3 and √3 and 2। ठीक है, 1 √3 and 2। ठीक है, 30 60 90 1 √3 and 2 के रेशियो में होगा। तो लेट्स से इफ यू हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस इज गिवन 60 डिग्री, ये 90 पता ही है हमें। अगर यहां दिया है 5 √3 एंड यू हैव टू फाइंड द अदर टू साइड्स, तुम्हें पता है कि 60 के सामने x√3 होता है। ठीक है, ये वाला, ये अगर x है, ये 2x है, ये x√3 है। सो माई √3 है तो x मेरा 5 हो गया। आई कैन राइट दिस एज 5, आई कैन राइट दिस एज 10 एंड आई एम डन। इफ यू नो 30 60 90 एंड 45 45 90, तुम्हें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक sin 30 कितना होता है, sin 90, sin 60, नो। यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री का, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, यू विल बी एबल टू क्रैक इट, राइट। एंड यू डोंट रिक्वायर ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज। सो कैट में जनरली दे डोंट आस्क ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज आस्क इन जैट एग्जाम में, थोड़ा बहुत कभी कभी आया है। कैट में जितना ट्रिग्नोमेट्री आता है, दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व विथ 30 60 90 एंड 45 45 90 से यू विल बी एबल टू क्रैक एनी क्वेश्चन। तो इफ आई नो माई 30 के सामने 12 है, तो 60 के सामने 12 √3 होगा, और 90 के सामने 12 का डबल 24 होगा। 10 √2 है इन फ्रंट ऑफ 90, तो 30 के सामने इसका हाफ 5 √2, एंड इसके सामने इंटू √3, तो 5 √6। ये 7 √3 है, तो इसके सामने क्या होगा, ओनली 7, 30 के सामने, और यहाँ पे 7 का डबल 14। तो आई होप यू विल बी एबल टू क्रैक इट। समझ में आ गया तुम्हें क्या करना है? तो आई गिव अ सर बेसिक ये 10 √2 एग्जांपल। का क्या होगा? क्या? 10 √2 वाला एक बार समझेगा। 10 √2 किसके सामने है? 10 √2 90 के सामने। 90 के सामने क्या होता है? डबल होता है 30 के सामने का। तो 10 √2, अगर 90 के सामने 10 √2 है, तो फिर 30 के सामने क्या होगा? इसका आधा। इसका आधा क्या होता है? 5 √2। और 60 के सामने क्या होता है? इंटू √3। तो इंटू √3 करेंगे एक्स में, तो क्या आएगा? 5 √6 आएगा।
ओके ओके। सो गॉट इट। इसका एक थैंक यू। एग्जांपल है कि लेट्स से अ ट्री ब्रेक्स फ्रॉम बिटवीन, ये ट्री है, ये ब्रेक्स फ्रॉम बिटवीन, यहां से कट टूट गया, एंड द ट्री नाउ टचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो ट्री यहां से टूट गया ऐसा, और अब ये ऐसा ग्राउंड को टच कर रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। द टॉप ऑफ द ट्री is at 10 meter from the root. ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। बिकॉज ऑफ द विंड अ ट्री ब्रेक्स फ्रॉम इन बिटवीन, इन बिटवीन डजंट मीन एकदम एग्जैक्टली आधा पे टूटेगा, सो समवेयर फ्रॉम द टॉप, एंड फॉल्स डाउन एंड टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the ground, and it is at 10 meter from the root of the tree. So what is the height of the tree? हाइट ऑफ द ट्री, मेरा हाइट ऑफ द ट्री निकालना है भाई। हाइट ऑफ द ट्री तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ दोनों मिला के है, बिकॉज यही पहले हाइट था, वो टूट गया है। ओके, नाउ यू नो दिस इज 60 डिग्री, तो तुमको पता ही है ये तो 90 डिग्री है। अब देखो, जिनको ट्रिगो पता है, दे नो कि इट्स अ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन वेर यू कैन यूज कि tan थीटा, tan 60 डिग्री, मतलब मैं तेरे को दोनों बताता हूँ, मतलब डराता नहीं हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ। कि देखो, जिन लोगों को साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, यहाँ पे tan लगेगा। tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है P/B, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर तेरे को पता नहीं यहाँ पे P, बट बेस तुमको पता है कि 10 है। tan 60 डिग्री मतलब √3 होता है, √3 इज इक्वल्स टू P/10। सो P बिकम्स 10√3, दिस बिकम्स 10, इसको क्या हो गया, दिस बिकम्स 10√3। ठीक है, 10√3। सो यू नो दिस इज 10√3। अब यू नो दिस पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो, या फिर देन यू कैन यूज cos थीटा। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस इज 10 एंड हाइपोटेनस यू डोंट नो। अगेन cos 60 डिग्री का मतलब होता है हाफ, हाफ इज इक्वल्स टू 10/a। अरे यार, 10/a, तो यू कैन गेट a इज इक्वल्स टू 20, दिस कम्स एज 20। दिस इज बाय ट्रिग्नोमेट्री, जो हमें नहीं करना है। ठीक है, समझने का ट्राई भी मत करो, ये तुमको नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, अभी लेट्स से आई डोंट वांट टू यूज ट्रिग्नोमेट्री, ये मैं हटा दे रहा हूं। हमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना ही नहीं है। हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है स्पेशल ट्रायंगल। ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 है। तुम्हें पता है यार कि तुमको 30 के सामने वाला दिया है, तो 90 के सामने डबल कर दो, और 60 के सामने 10√3 कर दो। कोई ट्रिगो नहीं, कोई कॉस टैन वैन कुछ नहीं लगाना, और इतना ही काम, इतना ही कैट में आता है, उससे ऊपर नहीं आता है। यू वॉन्ट गेट एंगल ऑफ 75 डिग्री, यू वॉन्ट गेट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो तुम बोलोगे ऐसा tan 15 डिग्री के लिए तो फिर क्या करेंगे, है ना? तो वहां पे वो सब तुमको नहीं चाहिए, डोंट रिक्वायर दोज एंगल्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाइट एंड डिस्टेंस में इसको कैसे यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं, एंड नॉर्मल मेथड में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन सेम गोज फॉर 45, 45, 90। सो ये एक स्पेशल ट्राइंगल था 30, 60, 90। एक और स्पेशल ट्राइंगल होता है 45, 45, 90। उसमें ये तुमको पता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज x√2, x राइट। सो इसमें यू हैव x√2, मतलब अगर ये मेरा x है, ये मेरा x है, तो ये मेरा x√2 होने वाला है। जैसे ये दिया मेरे को 7√2, किसके सामने दिया है, 90 के सामने, तो तूने यहाँ लिख दिया है 7√2। यार ये 7√2 मतलब x कितना हुआ, 7 हुआ, तो ये मेरा 7 है, ये मेरा 7 है, खत्म, दोनों आ गया। नो यूज ऑफ एनी पाइथागोरस नहीं लगेगा यहाँ पे। बाकी तुम कर लोगे राइट, 3 है, 3 है, 3√2 है, ये 3,
ये 3, ये 3 रूट 2, ये 7 रूट 2 है तो ये 7, ये 7, ये 10 है तो 10/√2, 10/√2, डन। ओके, नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन इफ ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या करता है, ये उस साइड को, सो इन दिस केस इफ यू सी हियर, ये जो है ना, यही सर्कल बना दोगे ना, सर्कल बन जाएगा अगर यहाँ पे, तो यही सरकम सर्कल बन गया, ये सरकम रेडियस बन गया। व्हाट इज सरकम रेडियस इन दिस केस? सो व्हेनेवर यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, सरकम रेडियस जो होता है ना, वो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हेनेवर यू हैव राइट एंगल ट्राइंगल, किस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल, डजंट मैटर, आइसोसलीस है, इक्विलैटरल है, नॉर्मल है, कोई भी है। तो इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, रिमेंबर योर, in right angle triangle what happens is whenever you have a right angle triangle, the circumcenter is always hypotenuse का half। ठीक है, आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को। ये बना के ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको, ऐसा अचानक से लगे ना यार ये तो इस इफ यू नो दिस विल बी एबल टू सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चन, ऐसे ही बन जाएगा। मतलब तुमको अगर बाई चांस निकालना पड़ गया, तुमको फॉर्मूला यूज करना पड़ जाएगा। लेट्स एग्जांपल, आई विल गिव यू एन फॉर्मूला मेथड। लेट्स से यहाँ पे तेरा 6 है, ये 8 है। ठीक है, ये 6 और 8 दिया, बस ये दो चीज दिया। अब बोला ना कि फाइंड द सरकम रेडियस, फाइंड द सरकम रेडियस। एनीवन हु रिकॉल्स द प्रॉपर्टी ऑफ सरकम रेडियस, ये वाला छोड़ के, ये प्रॉपर्टी नहीं, सरकम रेडियस का फॉर्मूला किसी को याद है, हाउ टू फाइंड सरकम रेडियस? किसको याद है, देखते हैं, या फिर नोट किया, बुक से देख के बता दे। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या, हाउ टू फाइंड द सरकम रेडियस? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना के। वो तो अलग है, वो फॉर्मूला से कैसे आएगा, व्हाट वाज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाउ टू फाइंड सरकम रेडियस? कोई फॉर्मूला दिया था मैंने? इफ यू सी, दिया है, एक फॉर्मूला दिया है मैंने। एरिया से निकाल सकते हैं ना, एरिया इज इक्वल Breakup. टू हाँ, तो वो फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ABC/4R। ये एक फॉर्मूला दिया था मैंने सरकम रेडियस के लिए, इन रेडियस के लिए S/R। एरिया यार इस केस में, चलो 6 8 बाई पाइथागोरस, 6 8 तो ये कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, व्हाट्स द एरिया ऑफ द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस 8 इंटू 6 48, उसका हाफ 24, तो मेरा एरिया हो गया 24। व्हाट इज योर ए? 6 8 10, मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 10, 4R, 4 इंटू R, चल R निकालने का ट्राई करते हैं। दिस इज 24, दिस इज 48, तो 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, व्हाट इज योर R? यू आर गेटिंग RS 5। ठीक है, अब यार इसके लिए तूने क्या क्या किया, तुमने एरिया का फॉर्मूला लगाना, ABC का लगाया, 4R लगाया, पुट किया, सॉल्व किया, ऐसे तुम लोग का मैथ्स खराब है। इतना कैलकुलेशन करोगे और सब खराब निकल जाए। और अगर तेरे को पता था, ये अगर ये याद है, राइट एंगल ट्राइंगल में ना यार, मेरा जो सरकम रेडियस है वो ऑलवेज हाफ द हाइपोटेन्यूज होता है। तो 6 8, 10 10 का आधा कर दो, 5 5 है मेरा, ये सब नहीं लगाना है मुझे फिर उस केस में, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कहीं भी नहीं कर देना। पर कहीं भी एक्चुअली हाइपोटेन्यूज होगा भी नहीं वैसे तो, बाय द वे। ऑल्टीट्यूड्स टू हाइपोटेन्यूज, ऑल्टीट्यूड्स वाले फॉर्मूला में रिमेंबर, इट इज A/B = H/C। अब तुम बोलोगे यार ये इसका क्या है और क्या कर रहे हैं, इसका समझ में नहीं आया, तो मैं तो उसका भी क्वेश्चन देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेम, 6 8 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ H। ये नहीं यूज करना है, कैसे करोगे? जिन लोगों ने पहले कैट किया है, जिन लोगों ने पढ़ा है, वो सोच रहे होंगे सर यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल से बनेगा।
बराई राइट है, सिमिलर ट्रायंगल से आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलर ट्रायंगल अगर आता होगा यूज करना तो, राइट, यू हैव टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स सिमिलर, देन यू हैव टू अप्लाई द सिमिलैरिटी का मेथड, राइट, एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट, तब बन जाएगा। बट यार उसके बिना कैसे बनेगा, क्वेश्चन वो है। एनीवन हु नोज व्हाट आई एम टॉकिंग, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, सिमिलैरिटी को छोड़ के कैसे बनेगा? सर 30 60 90। पर 30 60 कैसे बनाएगा तू? कौन सा 30 इसमें, कौन सा 90, कौन सा 90 तो समझ में आ रहा है, 30 60 कौन सा है? तो तुमको एंगल नहीं पता है, तो यू डोंट नो 30 60। अभी तुमको सिमिलैरिटी नहीं पता है। एनीवन सर एनीवन जो यहाँ एरिया पे के जो भी है। फॉर्मूला से हाँ, ले सकते, एरिया के फॉर्मूला से ले सकते। करेक्ट, एरिया के फॉर्मूला से बन सकता है। अगर मैं यहाँ से एरिया देखूं, व्हाट इज माय एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस, दैट्स 8 इंटू हाइट विच इज 6। और अगर मैं एरिया यहां से देखूं, ये भी तो मेरा बेस है एक तरह से, उल्टा देखो तो वो भी बेस है मेरा, उसका जहां भी परपेंडिकुलर है वो नीचे बेस हो सकता है। तो माई बेस इज हाफ इंटू बेस इज 10 इंटू हाइट, मेरा हाफ ऑफ गया। अब आई कैन सॉल्व माई एच, विच इज नथिंग बट व्हाट आई सेड, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एच इंटू सी। मैं तो को सारा मेथड बता रहा हूँ यार, मतलब कि इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूलाज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एरिया तो मैं ऐसे भी देख सकते हैं और एरिया इधर से भी देख सकते हैं, बिकॉज एरिया मतलब बेस इंटू हाइट ही होता है ना, किधर से भी यूज कर लो। सो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, यू विल बी एबल टू क्रैक जो मैंने अभी बताया, उससे उससे बन जाएगा ये। ठीक है, तो ए इंटू बी इजिकल्स टू एच सी। आई एक्सप्लेन यू कि किस वे से, तो डोंट हैव टू रटो 5 फॉर्मूलाज नहीं रटना है तेरे को, समझना है सिर्फ। ओके, एक और है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये भी हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और इसका वर्टेक्स, सो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ होता है इस केस में, ऑल्टीट्यूड्स वाले में। सर एक क्वेश्चन था। बोलो ना। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है वैसे कि इट्स एन एंगल बाइसेक्टर, बट डायग्राम के थ्रू हमें लग रहा है कि सब सही ये लग परपेंडिकुलर। रहा नहीं, सो ज्योमेट्री में ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एक बार एक ही बात हूं मैं, व्हाट इज दिस वैल्यू? नहीं पता बस कौन सा क्यों? ट्राइंगल है कैसे। लग रहा है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे है। नहीं तो इसलिए। ये नहीं करना है ज्योमेट्री में, जब तक कुछ भी बोलेगा नहीं, कुछ भी अपने को एज्यूम नहीं करना है। सो दिस इज हैज बीन मेनी टाइम्स टेस्टेड इन, ये यहाँ पे जीआरई में तो बहुत टेस्ट किया है इन लोगों ने क्वेश्चंस को। तुमको कहीं कहीं दूसरे वे में दे देते हैं, बहुत बार ऐसा डायग्राम बनाते हैं कि लगता है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, बट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। वो एकदम स्ट्रेट बना देगा, ऐसा एकदम स्ट्रेट, मेरा तो पेन चलो नहीं वैसा बना रहा है, बट एकदम स्ट्रेट बन जाएगा। तो तेरे को लगेगा ही कि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें क्या ही है। लेकिन नहीं, एज्यूम नहीं करना है। सो टिल इट इज मेंशन विल नॉट एज्यूम एनीथिंग। इवन ऐसा अगर है ना परपेंडिकुलर नहीं नहीं, लिख बाइसेक्टर। दिया है क्वेश्चन में तो परपेंडिकुलर ही बोलना है। अगर साइन बना दिया तो भी परपेंडिकुलर लेना है। देखो ये मैंने गंदा सा बना दिया, बट फिर भी मैंने ऐसा कर दिया तो ये परपेंडिकुलर ही है, फिर तो 90 डिग्री ही लेना है। तो ये साइन मीन्स परपेंडिकुलर ओनली। नहीं नहीं सर, मैं बोलूँ अगर है ना डायग्राम में हमें दिखाया है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया देख, है। ऐसा मैं बात, बहुत तरीके हैं। हाँ। ये और ये ऐसा दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया है, तो इट मीन्स एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तुमको। ओके। ठीक है, कुछ कुछ साइंस होता है जैसे ये, इसका मतलब क्या है ये?
both the sides are equal. करेक्ट, इट्स एन आइसोसिस ट्राइंगल, ये ऐसा But दिया हुआ है, इट्स एन आइसोसिस ट्राइंगल। ऐसा कर दिया, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो कुछ साइंस पता होना चाहिए। एक तो यही साइन होता है इक्वल वाला साइड का, एक एंगल का होता है, और एक परपेंडिकुलर का होता है। मेनली तो तीन ही साइन है। एंड डोंट एज्यूम एनीथिंग इन पेपर अनटिल अनलेस इट्स गिवन। ठीक है, कुछ एज्यूम नहीं करना है हम लोग को। okay, sir. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो देख, सर दो चीजें प्रीवियस हैं स्लाइड में अब। जो x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, हाँ, ये वो वाला, कैसे डिराइव, हाँ वो कैसे, ये ये वाला कैसे डिराइव। फॉर्मूला सिमिलर ट्राइंगल से डिराइव्ड है। अभी हम कर रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल, उससे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है और ये बड़ा ट्राइंगल है, सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, यहाँ एक 90, यहाँ एक 90 है। फिर वी राइट ऑल द साइड्स एंड दिस विल कम आउट। अभी करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल में वो आएगा। ओके, सो दिस इज अ लास्ट पार्ट एंड थोड़ा सा थियरम्स, देन आवर थियरी इज डन, देन वी मूव टू सम्स। ओके, सो यहाँ पे तेरा लास्ट होता है सिमिलैरिटी, एंड देन थोड़ा बहुत एक दो बेसिक, बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, या एक आधा थ्योरम और है, बस बाकी खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे ट्राइंगल्स खत्म हो जाता है, और फिर देन वी मूव टू द क्वेश्चंस। सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, देखो दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्ग्रुएंसी होता है, और एक सिमिलैरिटी होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, और सिमिलर का मतलब होता है सेम टाइप बट मे नॉट बी इक्वल। जैसे ये दो ट्राइंगल, दे मे बी सिमिलर, इक्विलैटरल अगर हैं तो दे मे बी सिमिलर, बट दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इक्वल तो नहीं है, बिकॉज साइड्स इक्वल नहीं। इक्वल का मतलब होता है सब चीज इक्वल, साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल, उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और अगर एक जैसा होता है तो उसको सिमिलर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी जनरली दे हैव नॉट टेस्टेड इन कैट, बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, इक्वल ही तो प्रूव कर देते हो तुम सिर्फ, तो सब इक्वल हो जाता है, तो उसमें उसका प्रॉपर्टी ज्यादा कभी यूज नहीं होता है। बट यू शुड नो हाउ टू प्रूव अ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, RHS, साइड एंगल साइड, वो दो तीन चार प्रॉपर्टी तेरे बुक में दिया, वो पढ़ लेना, बट वैसे कुछ खास काम का नहीं है। मेन इज कि हाउ टू प्रूव ट्राइंगल आर सिमिलर, बिकॉज सिमिलर्स पे क्वेश्चन तो आते ही हैं। एंड वंस यू आर नॉट एबल टू क्रैक, अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है ट्राइंगल का, तो तू समझ जाना वो सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है। वाई साइड अच्छे स्टूडेंट हो तो, क्योंकि खराब स्टूडेंट को तो कुछ भी सम ऐसे भी नहीं बने, तो मैं सोचता कि सिमिलर का ही है। आई एम सेइंग कि तुमको पता है सारे थ्योरम, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो तुमको देखना पड़ेगा कि सिमिलर ट्राइंगल उसके अंदर कहीं तो होगा। तो देन तुमको ट्राइंगल ढूंढ के सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल में होता है क्या? सिमिलर ट्राइंगल का मतलब एक जैसा ट्राइंगल होता है, राइट? सो लाइक यू हैव these two triangle, this. So these are similar triangles, right? Same shape but may or may not be of the same size. जैसे अगर मेरा ये साइड ABC है और एंगल XYZ है, तो सारे एंगल ना सिमिलर होंगे, XYZ एंगल सिमिलर होगा, साइड मे नॉट बी, बट दे विल बी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर नॉट। तो ABC साइड है, तो हो सकता है बाहर वाला 2A 2B 2C हो, बट प्रोपोर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम ही अलग अलग हो, ऐसा नहीं होता है। अगर एंगल इक्वल है तो साइड में देयर विल बी सम प्रोपोर्शन, इट विल बी इधर डबल और हाफ और थ्री फोर्थ, बट सब सेम ही रेशियो में होगा। जैसे ABC मेरा साइड था, अंदर वाला आधा आधा है, बाहर वाला डबल है, उसके अंदर वाला 10th 1/10 टाइम है, बट दे हैव सम रिलेशन, बट सेम टाइप, राइट? सो एंगल्स आर सेम, साइड आर इन proportions. What are the tests to check if the triangles are similar? एक तो होता है एंगल एंगल, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है साइड साइड साइड, एक RHS। These are the four ways to test whether a triangle is similar or not. Remember, this is not side angle side. साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड प्रोपोर्शन में होना जरूरी है। I'll give you an example. ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये है 5, ये है 10, ये है 50 डिग्री।
ये है 10, ये है 20, ये है नो, ये है 50। बताओ, आर दीज टू ट्राइंगल सिमिलर? क्या लगता है, ट्राइंगल सिमिलर है, यस और नो? यस सर। यस। अदर्स? चैट नहीं बोल सकते हो तो भाई लिख दो चैट बॉक्स में यस और नो। थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ सिमिलर यार। नहीं है। सिमिलर नो नहीं है, क्यों सिमिलर, नहीं है सिमिलर? क्योंकि वो जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में नहीं आ। करेक्ट। पहली बात तो ये सिमिलर नहीं है। रीजन वॉज नॉट साइड, रीजन वॉज द एंगल। बिकॉज वेन आई से साइड एंगल साइड, द एंगल हैज टू बी बिटवीन द टू साइड्स। तो ही हुआ ना ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर यहाँ पे 50 डिग्री होता तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाता। ठीक है, मैंने पहला ही रॉन्ग दिया ताकि सो दैट यू डोंट से करे तो बताया तो यही होगा ना, सिमिलर ही होगा, तो ऐसा नहीं है। सो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल इन बिटवीन शुड बी इक्वल एंड द साइड मे नॉट बी इक्वल बट दे शुड बी प्रोपोर्शनेट। मतलब डबल है तो डबल, सभी डबल है। ठीक है, तो रेशियो 1:2, 1:2 है। एंगल बीच में सेम है तो साइड एंगल। अगेन ये भी एस 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 का मतलब भी वही है। इट डजेंट मीन ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, दे आर इन प्रोपोर्शन। जैसे ये वाला, ये ए बी सी है, ये 2A 2B 2C है, तो सिमिलर ट्राइंगल है। एन आर एच एस मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड द साइड। एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस और एक साइड, और तीनों प्रोपोर्शन में होना चाहिए एंगल को छोड़ के। इसमें से एनी डाउट एनीवन इज हैविंग, आस्क। सर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी सिमिलर एंगल ट्रायंगल्स ही हो जाते हैं ना? कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर ही होता है बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। क्योंकि जो मेरा सी, जो सिमिलर का मतलब क्या हुआ, ये मेरा ये और ये मेरा सिमिलर एंगल्स हो सकता है, 60 60 60। ये भी 60 60 60। तो इसमें दे टू आर सिमिलर बट दे मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। राइट, इक्वल होना जरूरी नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट है तो सब चीज तो इक्वल ही हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल हो ही गया। तो रिमेंबर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट सिमिलर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके। सो कब तुम्हें पहचानना है, कैसे पहचानोगे कि यार ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, और व्हेन डू यू यूज इट? तो एक तो प्रेजेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, अगर कोई पैरेलल साइड से किसी दो ट्रायंगल के अंदर या कोई भी कॉमन ट्रायंगल के अंदर, तो दे माइट बी सिमिलर बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट वहां आ जाता है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंगल, कोई कॉमन एंगल दिखा तो समझना है कि यार यार यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं। और प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल दिखा तो भी लगा सकते हो। ठीक है, so whenever you see a vertical opposite angle, whenever you see your common angle, and whenever you see a parallel sides, and whenever you know all the principles and you're not able to solve, there might be similar triangle in the chap in the question. तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का अब आता है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है? If a line is parallel to any side of a triangle, it divides the other two sides proportionally, right? So you can say your AD upon BDB is equals to AE upon EC. Midpoint theorem, whenever the midpoints of two sides are joined, then this side becomes parallel to this one and this is half of this one.
देख, इतना थियरम मेरे याद मत करिए, दोनों थियरम एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है, बताता हूँ क्या। सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, कैसे? सो लेट्स से, मैं तेरे को सिमिलर ट्रायंगल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देयर ए बी सी एंगल, सिर्फ एक इससे तेरा दो दो थियरम हो जाता है। ए बी सी, लेट्स से दिस इज डी, दिस इज ई। ठीक है, ये पैरेलल लाइन दे दिया। इसका मतलब तुमको तो कंफर्म है ना, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब ये एंगल दोनों में कॉमन है। 2 3, ओके। सो हाउ डू यू राइट, मैं लिखना भी सिखा दे रहा हूँ। हाउ डू यू राइट अ ट्राइंगल इज सिमिलर टू द अदर ट्राइंगल, वी राइट लाइक दिस। कि जो तूने तीन एंगल प्रूव किया ना इक्वल, जैसे कौन सा, इसमें डी एंगल, सेकेंड डबल वाला छोटे में ई एंगल, और ट्राइंगल तीन वाला ए, छोटे ट्राइंगल का। बड़े ट्राइंगल में सिंगल एंगल बी, डबल एंगल सी, एंड ट्रिपल एंगल इज ए। दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तुम ऐसे भी लिख सकते थे ए डी ई अपॉन ए बी सी, बट ऐसे क्यों लिखते हैं हमेशा? सो दैट वेन यू हैव प्रूव्ड विच एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, देन यू नो कि किसके सामने का मेरे को साइड लिखना है रेशियो में। वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या बोला मैंने। तो यू कैन राइट, यू पीपल कैन राइट कि माई ए डी ई इज सिमिलर टू ए सी बी। ये भी लिख सकते हो कि यार मैं ए डी ई और ए सी बी तो इक्वल है, सिमिलर है। अब ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इसमें मैंने जो एंगल जिसके साथ लिखा है ना, वो एंगल वो एंगल उसके साथ सिमिलर है। लाइक एग्जांपल, डी एंगल एंड बी एंगल का सिमिलर, तो क्या होगा, छोटे ट्राइंगल में ए ई, और बड़े वाले एंगल बी के सामने ए सी, दे आर इन प्रोपोर्शन टू एंगल ई। ई के सामने क्या है, ए डी, और सी के सामने क्या है, ए बी। ए के सामने बी सी, सॉरी स्मॉल वाले के सामने डी ई, और बड़े वाले एंगल ए के सामने बी सी। दे आर इन प्रोपोर्शन, सो यू विल नो कि किसको मैंने किसके सामने लिखना है। क्योंकि ये तो चलो इजी वाला है, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट सिमिलर ट्रायंगल मिल गया, उसके बाद उसके सामने का जब रेशियो लिखना पड़ता है, यू माइट राइट ऊपर नीचे थोड़ा ये वाला, और उससे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी मुझे पता है एंगल डी एंगल बी इक्वल है, तो उसके सामने के साइड लिखा, फिर ई का लिखा, ई और सी सेम है तो उसके सामने का लिखा, ए और ए सेम है उसके सामने का लिखा। अब तूने यहाँ पे मान लो, अब तुम अपने मन से जा रहे हो कि ए के सामने कौन सा साइड है, डी ई है यहाँ पे, चल ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके सामने बड़ा वाला बी सी है। अब नेक्स्ट एंगल डी लिखा मैंने ये वाला, इसके सामने ए ई है। सी के सामने, अब इसके सामने तो यार ए बी है, तो ये रॉन्ग हो सकता है। तो यू राइट इट केयरफुली सो दैट ये मिस्टेक ना हो। तो दैट्स व्हाई यू हैव एक्सप्लेन कि जो एंगल प्रूव कर रहे हो इक्वल ना, उसके सामने ही सिमिलर साइन लगा के लिखो, सो दैट व्हेन यू राइट इन प्रोपोर्शन इट बिकम्स इजियर फॉर यू। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये यही यूज करना। और देखो, अब तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट आया कि यार हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये वाला मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में देखो, अगर मिड पॉइंट मतलब हाफ हाफ है, तो इफ दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, इफ दिस इज वाई, दिस इज ऑल्सो वाई। एंड सेम में जो मैं तीसरा भी जो लिख ही दिया है ना, तो इफ दिस इज जेड तो दिस इज ऑल्सो जेड, सॉरी 2z। वाई? बिकॉज ये 1:2 के रेशियो में है, ये 1:2 के रेशियो में, तो ये भी 1:2 के रेशियो में होगा साइड्स। सो दैट इज व्हाट मीन्स मिड पॉइंट थियरम। एंड बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम भी वही था, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। सो सब सिमिलर ट्राइंगल से ही आया है। तुमने कुछ नहीं किया, अगर सिमिलर ट्राइंगल भी बना के ये लिख दिया, तुम यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। So, midpoint theorem is basically when two midpoints meet, they are parallel to each other, right? वो ही तेरा मेन होता है, the line joining midpoints of any two sides of triangle is parallel to third side and half its length. So this is a midpoint theorem. And I've explained you this. Okay, now अभी तक what we had seen in the last slide, ओ हटा दिया मैंने, साइड प्रोपोर्शन में होते हैं, बट सिर्फ साइड नहीं, साइड तो होता ही प्रोपोर्शन में सिमिलर ट्रायंगल में, ये तो होता ही है, बट ऑल्सो
the medians are in proportion, the altitudes are in proportion, the angle bisectors are in proportion, the in radius is in proportion, the circumradius is in proportion, and area of triangle is also in proportion, but the square of any of these. ये लिख लेना, बहुत लोगों को सिर्फ साइड्स पता है, बट मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, इन रेडियस, सर्कम रेडियस सभी प्रोपोर्शन में हो जाते हैं. So like example, if I know that this side and this side is x and 3x, और मान लो जैसे मेरे को यहाँ का सब साइड, अच्छा चल थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताता हूँ क्वेश्चन को. टक 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 हाँ 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 ठीक है, ओके. सो लेट्स से इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. थोड़ा इज ऑफ सॉल्विंग के लिए कर रहा हूँ मैं. ये मेरा है 6, ये 8, ठीक है. और ये मेरा एक और ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री, और मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, जो भी नहीं 30 है, ये 30 डिग्री, ये 6, ये 8, ये लेट्स एज्यूम 18. ओके. तो अभी आई हैव टू फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ दिस वन. सर्कम रेडियस. भाई सर्कम रेडियस के लिए क्या लगेगा अपने को, ये तो लगेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस वन. But if I see this is 30, this is 30, this is 90, this is 90. मतलब एक और वे है वैसे, बाय द वे 30, 60, 90 भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, बट ठीक है चलो, उसको छोड़ता हूँ अभी. हाँ, तो मैं बोल रहा था 30, 90, 30, 90, तो ये 60, ये भी 60 सिमिलर ट्रायंगल हो गया. तो 6, 8, ये 10, 10, तो इसका सरकम रेडियस 5. बराबर है यहाँ तक. सरकम रेडियस मैंने अभी वो बता दिया था, सरकम रेडियस हाफ होता है हाइपोटेन्यूज का. ये 5 हो गया. अब ये 6 है, ये 18 है, मतलब 3 टाइम्स. तो सरकम रेडियस इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 15. मतलब नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसलिए वैल्यू कुछ भी आएगा, बट मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था तुम्हें कि उसी रेशियो में वैरी करेगा. तुम बोलोगे सर उसका आंसर राइट नहीं आया. एक्चुअली राइट नहीं आया, क्योंकि मैंने डायग्राम कुछ भी बनाया था उस रेशियो में आएगा नहीं ऑब्वियसली 30, 60, 90 का. ठीक है. Okay, so just to give an example, a median altitude, angle bisector, in radius, circumradius, all are in proportion in similar triangles. If two triangles are similar, then the ratio of the area is equal to square of the ratio of their sides. किसी भी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है. So if two sides of similar triangles are in the ratio 2:5, तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा वो 4:25 होगा. Again, important point. सो वॉट यू नो नाउ अबाउट सिमिलर ट्रायंगल, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टार्टिंग से, कि सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने का मेथड तुमको पता है. एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS, 4 मेथड है. दूसरा, कब करना है, व्हेन यू सी पैरेलल लाइन, व्हेन यू सी अ कॉमन एंगल, व्हेन यू सी अ वर्टिकल अपोजिट एंगल, व्हेन द क्वेश्चन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद वंस यू प्रूव द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मीडियंस आर इन प्रोपोर्शन, एंगल बाइसेक्टर्स आर इन प्रोपोर्शन, सर्कम रेडियस आर प्रोपोर्शन, इन रेडियस आर प्रोपोर्शन में होता है. उससे जो भी गिवन है तुम उससे सॉल्व कर पाओगे. एंड ऑल्सो इफ द क्वेश्चन गोज फॉर एरिया, तो एरिया इज द स्क्वायर ऑफ एनी ऑफ द साइड, या फिर एनी ऑफ द मीडियंस, एनी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, कुछ का भी हो सकता है. मतलब बिकॉज जब सब सिमिलर है तो एरिया भी सबके स्क्वायर के बराबर होगा. सो मैंने तेको सब चीज बता दिया, इतना ही होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट. Apollonius theorem, we have already discussed this one. ठीक है. AB² प्लस AC² इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD² प्लस ट्वाइस ऑफ BD². थ्री टाइम्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस. ये हमने डिस्कस कर लिया है सेंट्रोइड के चैप्टर में, टॉपिक में. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम
ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी किया हुआ है। ओके, नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट, एरिया का फॉर्मूला सारा। दिस इज माय लास्ट पार्ट, ठीक है, थियरी का, कि एरिया क्या क्या फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला है हाफ ऑफ ए बी साइन सी। दो साइड उसके बीच का अगर एंगल पता हो तो एरिया का फॉर्मूला इज हाफ ऑफ ए बी साइन सी। ये दो साइड है, ये ए है ये बी है, ये एंगल पता है थीटा। तो देखो एक्चुअली तुम, अगर ट्रिगो थोड़ा भी आता है, नहीं आता है तो भूल जाए, मैं जो बताने वाला हूँ अभी, ठीक है, जिसको आता है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें तो यार एरिया ऑफ फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस विच इज बी इंटू हाइट। हाइट चाहिए ना, हाइट के लिए ये हाइट अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री पे, तो साइन थीटा लगाओगे अगर, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज द हाइट upon hypotenuse, which in this case is a. तो what is height here? Height becomes a sin theta. तो वही आ गया ना, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, वहां से आया। नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, तेरे काम का ही चीज नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे ही बता दिया। तो हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। ओके, ऑल्सो एरिया का फॉर्मूला इज हीरोइंस फॉर्मूला। इसको हीरोइंस फॉर्मूला बोलते हैं, विच इज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। रिमेंबर क्वाड्रिलेटरल में भी अगर ये आया ना तो यही फॉर्मूला रहता है, बस ये एस हटा दो और यहाँ पे एस माइनस डी आ जाएगा। ये कब यूज करते हैं? व्हेन यू नो ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और व्हेन यू नो ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देन यू यूज दिस फॉर्मूला। व्हाट इज ए बी सी? ए बी सी तेरे तीन साइड ऑफ द ट्राइंगल होते हैं। व्हाट इज एस? एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। वो हमने डिस्कस किया था पहले भी, सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को ऐड करके डिवाइड बाई टू होता है। बस फॉर्मूला यार, कुछ भी नहीं, रट लो, ठीक है। एरिया हमने आर एस भी देखा था, एरिया हमने ए बी सी बाई फोर आर भी देखा था। दीज आर योर एरिया का फॉर्मूला। इज वन मोर फॉर्मूला विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो छह फॉर्मूला होता है ओवरऑल, पांच अभी तुम्हें पता है, छठा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करेंगे। कौन सा कब यूज करना है? सो डिपेंड्स अपॉन, मोस्टली ये 90% ऑफ द क्वेश्चंस में ये यूज होगा, 5% ऑफ द क्वेश्चन में ये यूज होगा, बाकी 5% में ये तीनों मिला के यूज होगा, ठीक है। वेन यू हैव बेस हाइट, जनरली अज्यूम कि हम यही वाला यूज करने वाले हैं। वेन यू नो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ये यूज करोगे। जब एंगल दिया हुआ है, ये जनरली इक्वेशन बना के सॉल्व करने काम आता है, बिकॉज एंगल यू नॉट सपोज टू नो साइन ऑफ द एंगल्स, राइट। तो इसीलिए ये उतना काम का नहीं है। ये जब इन सर्कल का क्वेश्चन होता है, ये जब सर्कम सर्कल क्वेश्चन होता है तब काम आता है। सर सॉरी, ये रूट वाला कभी काम आता है? ये जब तक वो तीनों साइड पता हो ना ट्राइंगल का, जैसे ये एग्जाम्पल 5 6 8, बताओ, कैन वी यूज हाफ बेस इनटू हाइट? नो, बिकॉज वी डोंट नो, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसमें हाइपोटेन्यूस नहीं है। डू यू नो साइन थीटा? कुछ थीटा ही नहीं दिया हुआ है। आर एस? नो, बिकॉज सरकम रेडियस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डू यू नो आर? सर इन रेडियस भी नहीं दिया हुआ है। तो एक ही फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर वाला। ओके। और सेमी पेरीमीटर का क्वेश्चन आया तो समझो बहुत पकने वाला है सॉल्व करने में, बिकॉज पहले एस निकालो, फिर एस को डालो, माइनस करो, स्क्वायर रूट निकालो, बहुत बहुत इरिटेटिंग होता है। ओके, सो दैट्स इट। अब तुम्हारे ऊपर है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, सॉल्व करो क्वेश्चंस। मैं लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा, जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना क्वेश्चन का लेवल मैं दे सकता हूँ, उतने क्वेश्चंस मेरे पास हैं देने के लिए। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना बना पाते हो अभी।
ओके डन। क्या आया भाई आंसर? टिक टिक टिक। ओके, 13 सो आंसर 13 आ रहा है सबका, तो राइट ही होगा। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 and 11 स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन their feet is 12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन their tops. So it's given two poles, 6 and 11, stand vertically upright on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, this is 6, this is 11. ये पूछा है, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 12 हो जाएगा, ये 11 है, सॉरी ये 11 है, ये 6 है, तो ये 5 हो जाएगा। 12, 5, 13 हो जाएगा बाई पाइथागोरस। वगैरह सॉल्व।
आया सबके आंसर्स? सो यू हैव वन पर्सन गिविंग आंसर 11 11, ओके, दो लोग का 11 आया है। 11, ओके गुड। 11, सो 11 11 आ रहा है, मतलब राइट होगा, फिर सबका तो सेम ही आ रहा है। तो लैडर 85 मीटर लॉन्ग, तो लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। सो दिस इज द वॉल एंड लेट्स से दिस इज द लैडर। दिस इज 85 मीटर with its bottom end 40 meter away from the wall. This is 40 meter away from the wall. If this ladder slips 7 meter, that means ये ladder अगर slip हो जाता है तो ये ladder आगे की तरफ चला जाएगा, नीचे हो जाएगा थोड़ा, slip हो गया, तो slip हो गया तो ऐसा हो गया। ये तो 85 ही रहेगा, दिस विल नॉट चेंज बिकॉज ladder का लेंथ तो 85 ही है। इफ दिस ladder slips 7 मीटर, दिस इज 7 मीटर, तो they have asked you कि वो by how many meters will its bottom end move further away from the wall, ये निकालना है हम लोग को। You have to find this one. Let me change the color. So बस तुमको पाइथागोरस ही तो लगाना और क्या करना है, राइट? सो अभी, राइट, सो अभी तुमको पाइथागोरस, अब द टू वेज, अब आई विल गिव यू हाउ टू यूज इट, राइट? सो अभी यहाँ पे वी हैव व्हाट, यहाँ पे देखो, अगर तुमको एक सेकंड ना, बस एक सेकंड दे दो। हम्म, सो मैं बता दूं तुम लोग को, यहाँ पे अभी हमने क्या आपको प्रॉपर्टी डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस कि दीज टू आर द हाइपोटेनस एंड द बेस। सो यू कैन गो विद दिस वन, 85 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर एंड प्लस वॉट एवर जो निकालना है मेरे को, पाइथागोरस से कर सकते हो। और अगर इफ यू रिमेंबर द ट्रिपलेट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये क्या होता है यार? ये होता है, पहले तो इस पे आ जाओ सर, 85 कैसे बनेगा? 17 फाइव सा, तो 40 भी कैसे बनेगा? 8 फाइव सा, कुछ कॉमन रखना चाहिए। सो 8 17, तो ये होगा 15 फाइव सा, विच इज 75। तो तुम्हारा पाइथागोरस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, राइट? इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तुमको ये आना चाहिए, तुमको ये तो पाइथागोरस तो आ ही जाएगा ना, उससे कर लेना सॉल्व। सो ये तेरा 75 है, उसमें से 7 चला गया, तो ये 68 हो गया। ये अब तेरा 85 ही है। Then again, now you have 85, you have 68, ठीक है? अगेन किस मेथड में आता है? 17 फाइव सा, 17 फोर सा, तो नीचे क्या होगा? 17 थ्री सा, मतलब 51। तो ये पूरा लेंथ 51 हो गया बाई पाइथागोरस ऑल्सो। आउट ऑफ दैट दिस इज 40, इसका मतलब ये हो गया 11। तो ये मैंने देखो बताया कि कैसे वी यूज डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड यू, कि एक्सप्लेन जो किया था मेरे को कैसे यूज करना है उसको। तो ट्रिपलेट हाउ वी हैव यूज्ड वो मैं बता रहा था तुम लोगों को। सर लास्ट पार्ट एक और बार समझा सकते हैं? पाइथागोरस लगाना, पाइथागोरस लगा दो, तुमको ये पता चल गया दिस इज 68, तो यू हैव अ ट्राइंगल विच इज 85 68 एंड दिस इज व्हाट, पाइथागोरस लगाओ, गेट द वैल्यू विच विल कम आउट टू बी 51। 17 फाइव जा, 17 फोर जा, 17 थ्री जा, 3 4 5 का ट्रिपलेट है 17 के टेबल में। सो देन यू हैव दिस, देन यू हैव दिस एंड देन यू हैव 51। ये कितना था? ये 40 था। ये कितना आया नया वाला? 51। तो कितने से स्लिप कर गया लैडर? 11 से। ओ ओके ओके, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट।
Okay, next one. The size of the triangle is 6, 8, 10. Find the in radius and circumradius of the triangle. आई होप सरकम रेडियस तुमने अभी तक कर लिया, तुमको टाइम ही नहीं लगाना चाहिए सरकम रेडियस के लिए. इट्स जस्ट द हाइपोटेनस का हाफ, 5. अब आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन रेडियस. ओके, इन रेडियस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 2. तो यार देखो, इन रेडियस का फॉर्मूला तेरे पास फिर से है. इट इज 6, 8 एंड 10. सो इन रेडियस का फॉर्मूला इज SR. SR, area of triangle. Area of triangle is half into 8 into 6. So 48 by 2, 24. In radius, sorry, this is semi-perimeter. 10, 8, 18. 18 plus 6, 24. 24 by 2, which is 12. And into R is equals to 2. Done. Okay, I hope this is clear. Next one.
ओके, हो गया। लेट्स सी हाउ मेनी आर एबल टू डू। सरप्राइजिंगली तीन लोगों ने आंसर दिया, तीनों का डिफरेंट है, एक का बी है, एक का सी है, एक का डी है। ओके, लेट्स सी। सो अभी यहाँ पे हाउ विल यू मूव अहेड विद दिस? सो दिस कैन बी डन in the adjoining right angle triangle. Find the value of x and y AD. This is parallel. This is parallel to BC. Right? Abhi you can use a similar triangle का concept to solve it. See, this is 6, this is 8, this is 10. Right? अब you know one thing you know already. याद है कि तुम लोगों को हमने किया था ऐसे वाले ट्राइंगल में हमने तीन कॉन्सेप्ट किया था। वन कॉन्सेप्ट वो सर्कम रेडियस का, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सेकेंड कॉन्सेप्ट वॉज वो जो हम लोग बात करते एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, जो यशवंत ने बताया था कि एरिया इज फ्रॉम हेयर इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फ्रॉम हेयर इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उससे तेरा ये निकल जाएगा। दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट हमने किया था कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तीन कॉन्सेप्ट किए थे। एक एक करके रिकॉल करना है, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आता है रिकॉल करना है क्या क्या किया था हमने। बिकॉज ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट जो हमने तुम किया था पहले। तुम जितने बार रिकॉल करोगे ना, जब भी कर रहे हैं, लेट्स से मेरा ये आया, ये क्वेश्चन देखते ही मैंने तीन चार कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेना है कि क्या क्या किया था हमने। अभी के लिए, बाद में नॉट रिक्वायर्ड, क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है, बट बाद के अभी तुम जितना रिकॉल करोगे उतना तुमको बाद में याद रहेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 6, दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस दैट्स 10 इंटू हाइट जो कि तुम्हारा एडी है। इससे मेरा एडी निकल जाएगा। राइट, वंस यू गेट 48/10 विच इज 4.8, ये मेरा एडी का लेंथ आ गया। वंस यू नो 4.8, देन यू यूज योर कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस। और मैं तो पाइथागोरस भी ना यूज करूँ, क्या यूज करेंगे पाइथागोरस की जगह पे? पाइथागोरस की जगह तुम यूज करो वही ट्रिपलेट। 12 5 = 60, 12 4 = 48, 12 3 = 36, so 3.6। अब 10 - 3.6 = 6.4 हो गया। तो ये तेरा क्वेश्चन डन हो गया। इट्स ऑल अबाउट रिकॉलिंग। हाँ, जितना रिकॉल करो कितना काम आएगा।
यार ऑप्शन 4 क्या है? अच्छा पिछला क्वेश्चन होगा वो, फिर ठीक है। सो 60/30 इज व्हाट 2 3 पीपल हैव गिवन। इसमें जूम में इज एन ऑप्शन ऑफ सेंडिंग अटैचमेंट इन द चैट में शायद होगा। टक 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 एवरीवन। Okay, so this question says in a triangle ABC, angle A is 90. This is, let's say B, this is C. AB is 5, AC is 12. This obviously becomes 13. AD is perpendicular on BC, AD is perpendicular on BC. अरे ये तो बहुत इजी है यार, वही क्वेश्चन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं तुम लोगों को, अभी जो अच्छे क्वेश्चंस है, काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, विल सी ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इतना तो हम ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे अभी, राइट? तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और भी है मेरे पास 10 और क्वेश्चंस हैं। तो आई एम सेंडिंग इट, अभी सब अलग अलग जगह पे हैं। तो ओके, नो इश्यूज, मैं क्वेश्चन सेंड कर दे रहा हूँ पीडीएफ अभी, जस्ट आई एम सेंडिंग द पीडीएफ। तो जस्ट सी इफ एवरीवन हैज गॉट इट। जिसको नहीं मिलेगा जस्ट आस्क कि सर नहीं मिला, बिकॉज आई डोंट नो फ्रॉम वेयर एवरीवन हैज ज्वाइन। तो मैं ग्रुप्स में पहले डाल दे रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज देर इज नो ऑप्शंस ऑफ सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम द पीसी ऑन जूम। इसमें ड्राइव से सेंड करने का ऑप्शन है, बट डायरेक्ट पीसी से सेंड करने का ऑप्शन नहीं है। या तो शेयर पॉइंट से या तो ड्राइव से सेंड करना पड़ेगा। इसमें आंसर नहीं है ना लेकिन। आंसर के लिए तुम हो ना, करो करो सॉल्व। जिसका आंसर नहीं मिलेगा बोलते जाना, जिसका मिल बट जाएगा तो सही है ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? हाँ, सही है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? सही है कि नहीं कैसे पर, अरे ये तो बुक के क्वेश्चन है ना आधे तो। जो एंड के क्वेश्चन है ना, 6 क्वेश्चन जो एंड में होंगे ना, वो डिफिकल्ट वाले हैं। वो मेरे से आंसर मांग लेना। बाकी तो तुम्हारे बुक के ही क्वेश्चन हैं, या तो सॉल्व एग्जाम्पल होगा या तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। अच्छा समझा। ठीक है, तो कर लोगे वहां से। एंड द सेकेंड थिंग इज कि सॉल्व, अब तुम लोग को जितना भी ज्योमेट्री, अभी तुम्हें क्या करना है नाउ, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्री विल कीप नेक्स्ट वीक। आज है वेडनेसडे, तो अभी या तो संडे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसमें से कोई, मतलब मोस्टली नेक्स्ट ही वीक रखेंगे। तो तुमको क्या ना, मेन चैप्टर ये है हमारा ज्योमेट्री का। तेरा फोकस होना चाहिए कि यार अभी से ना जितना भी ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, जिधर भी अवेलेबल है, ठीक है, पहले तो अपना बुक कर लो, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बढ़िया अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं, क्वेश्चन अच्छे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल बिना देखे ट्राई करो सबसे पहले तो। सो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 27 डेज में भी है, ठीक है। तो तेरा कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद टेक डाउन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहां से कर, जहां से तुम इसके बाद तुम ढूंढ सकते हो करो, बिकॉज इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट तो कहीं नहीं है, बिकॉज मैंने तो सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, अब तुमको अप्लाई कैसे करना है बस वही गेम है। तो पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसके बाद टेक डाउन कैट के क्वेश्चन इफ यू वांट टू। ठीक है, आई एम सेंडिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व करके देखो। सर आप ये पीपीटी फॉर्म में भेजोगे या पीडीएफ फाइल? क्वेश्चंस तो पीडीएफ में भेजूंगा। एक्चुअली जब पीडीएफ में भेजते हो ना तो काफी बार वो ओवरलैप होते हैं नहीं नहीं, स्लाइड्स क्वेश्चन तो। सिर्फ भेज रहा हूँ, क्वेश्चन ओवरलैप नहीं। क्या होता है ना, जो तू पीपीटी मांगता है ना, देखो पीपीटी तो पहले बार एंडेवर का है। दूसरा क्या है कि अच्छा। पीपीटी को नहीं भेजना अलाउड है, तो पीपीटी का पीडीएफ जब करोगे तो क्या होता है, जो एनिमेशंस होगा ना, वो सारा ओवर ये हो जाता है। जो जो एनिमेटेड रहता है ना, जो सारे इफेक्ट के साथ रहता है, वो लोग ओवरलैप कर जाता है मोस्टली, वो मुझे पता है। बट क्वेश्चन जो मैं भेज रहा हूँ वो पीडीएफ में है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक। और सर ओके। हाँ, ये टीआई का ये कुछ मॉक एनालिसिस या कुछ होने वाला?
मॉक मॉक एनालिसिस रेगुलर होता है, तुम लोग अटेंड नहीं कर रहे, मैं 2 3 बार डाल चुका हूँ। मॉक 5 6 का एक साथ हुआ था, अभी वापस 7 8 का एक साथ तो होने वाला है। तो अच्छा, मॉक्स क्वांट का के हुआ था तो वो तो मैंने अटेंड किया था, अच्छा बट किया था ना। डीआई का मुझे आइडिया नहीं है अच्छा कि कॉन्ट्स हुआ का, है। डीआई का भी हुआ था आई थिंक, डाला नहीं हुआ। तो लेकिन ये मॉक एनालिसिस रेगुलर होता है, तो मॉक एनालिसिस हर कुछ दिन पे एवरी संडे तो होता ही है कोई ना कोई मॉक एनालिसिस। तो मैं देखता हूँ, तो मैं ही एक, मेरे को एक ऐसे भी सेशन लेना है मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों में, 1 2 दिन में मैं एक प्रिपरेशन के ऊपर एक लेने वाला हूँ, एक सेशन लेता हूँ। हम्म, तो कैसे मॉक अटेम्प्ट करना, कितने करने हैं, तो एक बार वो उस पे आ जाते हैं, बिकॉज अभी व्हाट वी हैव अराउंड 50 days टू कैट। 50 बाकी है ना, कितना होगा आज, क्या तारीख है, 9 तारीख, हाँ 50 days टू कैट है। तो एक बार वो वाला भी एक वैसा कर लेते कंडक्ट। ठीक है। ओके। थैंक यू।